नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेंड्स एजुकेशन पॉइंट पर वेलकम है। आज का वीडियो क्लास 9 का चैप्टर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पर आधारित है। तो आए हम चलते हैं लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर की ओर। क्वेश्चन 1, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? दादाजी के निजी चिड़ियाघर में टोटो कैसे आता है? आंसर, टोटो वॉज इन द कैप्टिविटी ऑफ अ टोंगा ओनर. The grandfather gets sympathetic with the monkey and thinks that his private zoo would be a better place for Toto. So he purchased Toto from the Tonga wallah for 5 rupees. Toto एक टोंगा मालिक की कैद में था। दादा बंदर के साथ सहानुभूति प्राप्त करता है और सोचता है कि उसका निजी चिड़ियाघर टोटो के लिए एक बेहतर स्थान होगा, इसलिए उसने टोंटो को जीभवाला से 5 रुपये में खरीदा। Question 2, Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? Toto एक सुंदर बंदर था। Toto सुंदर किस अर्थ में है? Answer, Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Toto एक बहुत बंदर था। उनकी चमकदार आंखें गहरी सेट भौहों के नीचे शरारत से उठीं, और उनके दांत, जो एक सफ़ेद थे, बहुत बार मुस्कुराते हुए प्रदर्शित किए गए थे, जिन्होंने बुजुर्ग एंग्लो इंडियन महिलाओं से जीवन को डरा दिया था। लेकिन उसके हाथ सूखे से लग रहे थे, मानो वे कई सालों से धूप में पड़े हों। फिर भी उनकी उंगलियां जल्दी और दुष्ट थीं, और उनकी पूंछ, जबकि उनके अच्छे लुक को तीसरे हाथ के रूप में जोड़ा गया, वो इसे एक शाखा से लटकने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, और यह किसी भी विनम्रता को उकसाने में सक्षम था जो उसके हाथों की पहुंच से बाहर हो सकती है। Question 3, why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले जाते हैं? टिकट कलेक्टर ने टोटो को कुत्ता कहने पर जोर क्यों दिया? Answer, Toto was a real menace for every living soul in the household. Other animals in grandfather's zoo were at Toto's mercy even during night. So, grandfather decided to provide some relief to other animals in the zoo and thought of taking Toto to Saharanpur. The ticket collector was following his rule books, as there seems to be no rule for fixing a monkey's fare, so he equated Toto with dog. Ticket collector's ingenuity tried to categorize all pets of a certain size as dogs. Toto घर में हर जीवित आत्मा के लिए एक असली खतरा था। रात में भी दादाजी के चिड़ियाघर में अन्य जानवर टोटो की दया पर थे, इसलिए दादाजी ने चिड़ियाघर में अन्य जानवरों को कुछ राहत देने का फैसला किया और टोटो को शहरपुर ले जाने की सोची। टिकट कलेक्टर उनकी नियम पुस्तिकाओं का पालन कर रहा था, जैसा कि लगता है कि बंदर का किराया तय करने का कोई नियम नहीं है, इसलिए उसने कुत्ते के साथ टोटो की बराबरी कर ली। टिकट कलेक्टर की सरलता ने कुत्तों के रूप में एक निश्चित आकार के सभी पालतू जानवरों को वर्गीकृत करने की कोशिश की। Question 4, how does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो कैसे स्नान करता है? उसने ऐसा करना कहाँ से सीखा है? टोटो खुद को लगभग कैसे जिंदा करता है? Answer, Toto takes bath in a tub of warm water. It puts its legs in the water one by one and applies soap as well. As monkeys are good at aping others, so Toto has learned proper steps of bathing while watching the narrator doing same. Toto is fond of bathing with warm water, so once having tested the warmth of water in the kettle, Toto sits in the kettle. Probably he is not intelligent enough to understand the risk boiling water, so he pops his head up and down in the kettle. टोटो गर्म पानी के टब में स्नान करता है। यह एक एक करके पानी में अपने पैर डालता है और साबुन भी लगाता है। चूंकि बंदर दूसरों को क्षमा करने में अच्छे होते हैं, इसलिए टोटो ने कथावाचक को ऐसा करते हुए स्नान करने के उचित चरण सीखा। टोटो गर्म पानी से नहाने का शौकीन है, तो एक बार केतली में पानी की गर्मी का
परीक्षण करने के बाद टोटो केतली में बैठ जाता है। संभवतः वह उबलते पानी को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, इसलिए वो केतली में अपने सिर को ऊपर और नीचे चबूतरे पर रखता है। Question 5. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? लेखक यह क्यों कहता है टोटो उस तरह का पालतू नहीं था जिसे हम लंबे समय तक रख सकते थे? Answer. Though Toto was pretty and clever, he was very mischievous. He brought a lot of damage to the house by breaking dishes, tearing clothes and curtains. He also scared the visitors by tearing holes in their dresses. Furthermore, he didn't get along well with other animals in the house too. One day Toto crossed the limits by picking up a dish of pulao and running on a branch to eat it. When scolded, he threw off the plate and broke it. That's when grandfather decided he had had enough of Toto because he couldn't bear the losses that he incurred because of Toto's mischief. हालांकि टोटो सुंदर और चतुर था, वह बहुत शरारती था। उसने बर्तन तोड़कर, कपड़े फाड़कर और पर्दे लगाकर घर का बहुत नुकसान किया। उन्होंने अपनी पोशाक में छेद को फाड़कर विवोत्रों को भी डरा दिया। इसके अलावा वो घर के अन्य जानवरों के साथ भी नहीं मिलता था। एक दिन टोटो ने पुलाव की एक डिश उठाकर और उसे खाने के लिए एक शाखा पर दौड़कर सारी हदें पार कर दी। जब डांटा गया तो उसने प्लेट को फेंक दिया और उसे तोड़ दिया। जब दादाजी ने तय किया कि उनके पास टोटो की काफी कमी थी क्योंकि वो टोटो की शरारतों के कारण हुए नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।